Hello students, welcome back to our online class with Best English School students. So students, in this video we would like to start our subject English chapter 4. So the chapter 4 name is The Ashes That Made Trees Bloom. So this one is very interesting story students, and I hope that you will enjoy this story. So we won't waste our time and let's begin our video. So our chapter name is The Ashes That Made Trees Bloom. So let's begin. Firstly, we will discuss about the introduction. This is a story that about an honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and said the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. So we can see while reading this one that this is a story of a couple and their pet, and there are a lot of troubles. Neighbors परेशान करते हैं and etc. So we want, I will not definitely tell you the whole story, nor you will understand it. So let's begin. The Ashes That Made Trees Bloom, Part 1. In the good old days of the Damios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crab, and at mealtime, Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. The kind people fed the pet with tablets of fish from their own chopsticks, and also the boiled rice it wanted. Thus treated the dumb creature, loved its protector like a being with a soul. So students, in a good old days, ये बहुत पुरानी टाइम की बात है, there was a Damios. Damios means आपसी, यहाँ पे आपके मीनिंग्स लिखा है. Damios means in 19th century Japan, wealthier land owners. Damios का मतलब होता है land owners. Land owners मतलब ज़मीन, जैसे merchants, you know ना merchants, जिसकी ज़मीन हो, land owners थे. And there was a old couple था, वो लैंड ऑनर्स. सो जिसकी एक पेट था, वो था डॉग. और क्योंकि उसका कोई चिल्ड्रन नहीं था, वो ओल्ड कपल के कोई बच्चे नहीं थे, तो वो ये डॉग को अपने बच्चे की तरह पालते थे. एंड द ओल्ड मेड डेम, मतलब जो ओल्ड डेम्स थे, जो ओल्ड कपल थे, उन्होंने ब्लू कलर के क्रैप से कुशन बनाया था, पिलो बनाया था, एंड मुको. सो जो डॉग था उसका नाम क्या था? मुको. सो वो मुको को मील टाइम भी देते थे और उसका पेट नेम मुको था. तो वो बैठ के अच्छे से स्नीकिंग करता था, जैसे कि सारे कैट जिस तरह बैठ के अपना खाना खाते वैसे. तो वो जो काइंड पीपल थे, वो उसके पेट को टिबलेट्स ऑफ फिश, मतलब फ़िश उसको देते थे खाने के लिए, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, मतलब वो अपने खाने में जो वो खाते होते हैं वो ही खाना वो अपने डॉग को देते थे. जैसे बॉइल्ड राइस देते थे, मतलब जैसे एक बच्चे को पाला जाता है, एज वेल एज दे वर ऑल्सो ट्रीटिंग द डॉग लाइक देयर बेबी. एंड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विथ अ सोल. तो वो जो क्रिएचर था, डॉग था, वो अपने पेरेंट्स को, एक्चुअली देखिए तो वो उसके पेरेंट्स ही हुए ना, तो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता था और वो उनको बहुत प्रोटेक्ट भी करता था, और वो अपने सोल की तरह, अपनी जान से भी ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट करता था. वन डे the old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spread into the fields, working hard from morning until Oten Tosama, as the sun is called, has gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man,
to pick up the worms. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. So what happened students कि ओल्ड मैन वो एक राइस फार्मर था. ओके, राइस जो ग्रो करते हैं ना वो फार्मर था. तो वो हर दिन अपने डेली हॉर्स स्प्रेड मतलब अपने जो जिसे खोदते हैं हॉर्स स्प्रेड लेकर वो अपने फील्ड में चला जाता था. और वो सुबह से लेकर शाम तक जब तक सूरज नहीं ढलता तब तक वो बहुत मेहनत करके काम करता था. और उसके साथ हर दिन उसका डॉग भी उसको फॉलो करता था काम में जाने के लिए हर दिन. और वो कभी भी किसी को हार्म करते हुए नहीं देख पाता था ओल्ड मैन. तो एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि वॉर्म जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं ना कीड़े, वो बहुत ज़्यादा किसी ने पैर ढक दिया है तो वो मचल रही है मरने में लिए. तो उसने क्या किया, वो अर्थ वॉर्म को ओल्ड मैन ने अर्थ वॉर्म को उठाया मतलब वॉर्म को उठाया. क्यों? क्योंकि ओल्ड मैन बहुत पेशेंट था, बहुत अच्छा व्यक्ति था. और वो कोई भी लाइफ जिसमें लाइफ है, कोई भी एनिमल जिसमें लाइफ है उसको वो मारना नहीं चाह रहा था, उसको बचाना ही चाहता था. एंड फिर उसने अच्छे से संभाल के ऊपर रख दिया उसे. एंड वो बर्ड्स को भी खाना देते थे हमेशा कि जो भी लिविंग बींग्स है वो सबकी वो सेवा करते थे. यू कैन से राइट, मतलब ही ऑलवेज वांटेड टू हेल्प द each and every creatures, right? And that is a very good sign students. So one day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought this his pet was only playing and did not mind it, but the dog kept on whining and running to and fro for some times. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. The old man stuck his hoe in the earth when lo, a pile of gold gleamed before him. Wow, that is a magic. That is miracle, you can say, right? So क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक दिन डॉग भागते हुए रनिंग करते हुए इसके पास आया और उसे वो पाउज मतलब उसके जो पंजे होते हैं उससे उसके लेग में, हम लोग नहीं डॉग को आपने देखा होगा कि जो पेट डॉग्स होते हैं जो घर में पाले हुए होते हैं वो पैर से आपको साइन देते कि प्लीज़ मेरे पास आओ, या उसको अपनी लवी डबी चीज़ें शो करते. सो वो अपने लेग से वो आने लगा और वो कोई स्पॉट में कोई जगह में वो दिखाने लगा कि यहाँ पे चलो यहाँ पे चलो. वो बोल तो नहीं पाता है तो ही वॉज गिविंग द साइन टू द ओल्ड मैन. देन पहले तो ओल्ड मैन को ये लगा कि पेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, एंड उसने इतना ध्यान नहीं दिया उस बात पे. पर फिर जब वो कुछ टाइम तक डॉग फिर से वैसे करने लगा, वो भाग के जा रहा है और वहाँ पे वो स्पॉट को दिखा रहा है कि इधर इधर देखो ये है वो है. तो वैसे बहुत सारे उसे भी लगा कि चलो ठीक है देखते हैं. तो ओल्ड मैन ने फिर डॉग को फॉलो किया थोड़े यार्ड्स तक. उसके बाद जो डॉग था वो एक जगह पे स्क्रैचिंग करने लगा, अपने पंजों से उसे खोदने लगा. तो ओल्ड मैन को लगा कि हाँ होगा कुछ, मतलब वो एक फिश या कुछ डेड बॉडी होगी, वो सब के वजह से डॉग को स्पाउंस हो रहा होगा. बट जब फिर उसने बोला कि चलो ठीक है देखते हैं, तो ओल्ड मैन ने भी अपने हॉ को लिया और उसने अर्थ में डिगिंग करने लगा, खोदने लगा. तो वोला स्टूडेंट्स, वोला उन्हें क्या मिलता है, उन्हें बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स मिलते हैं, बहुत सारे रियल गोल्ड के कॉइन्स मिलते हैं. एंड दे वर सो हैप्पी, दे वर ग्लीम्स्ड. सो वी कैन सी द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन, राइट स्टूडेंट्स. दैट इज़ वन टाइप ऑफ मिरेकल. एंड हमें पता है कि डॉग को पता चल जाता है ये सब चीज़ें, बिकॉज देयर स्मेलिंग पावर इज़ ग्रेट. So then students, thus in an hour the old couple were made rich.
The old souls brought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smoothed him with kindness. So within hour, मतलब वो 1 घंटे में क्या हुआ, जो ओल्ड कपल थे वो रिच हो गए, वो अमीर हो गए. तो उन्होंने एक छोटा सा पीस लिया लैंड का और अपने फ्रेंड्स को फीस्ट दिया. फीस्ट मतलब खाने पे न्योता दिया, मतलब उन्हें खाने में बुलाया गया. और जो जो उनके फ्रेंड्स थे, गरीब नेबर्स थे, बहुत गरीब, उनको उन्होंने पैसे दिए. तो क्या है कि उनके पुअर नेबर्स अपनी लाइफ अच्छे से जी सके. तो एज़ फॉर द डॉग, ये सारे डॉग की वजह से हुआ, क्योंकि डॉग बहुत ज़्यादा स्मूदन था और बहुत काइंडनेस के बगल में था, राइट. वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे जो ओल्ड मैन थे, राइट. Now, in the same village, there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. So उसी जगह पे, उसी विलेज में एक और कपल थे जो बहुत ख़राब थे, विकेट थे, मतलब बहुत बुरे थे. उनमें कोई सेंसिटिविटी नहीं थी और दे वर नॉट एट ऑल काइंड ऑल्सो. सो और वो उनके घर के सामने से कोई भी डॉग जाते, किक्ड करते, उसको भगा देते, उसको स्क्राउंडल बहुत मारते और उसको भगा देते, कोई भी उसके घर के सामने से जाते तब. और जब उसने सुना कि उनके जो नेबर्स हैं उनको गुड लक हुआ है, उनको लॉटरी लगी है एक डॉग के वजह से, तो उसने क्या किया, वो डॉग को अट्रैक्ट करने के लिए अपने गार्डन में हर जगह बिट्स ऑफ फिश फैल दिया. क्या हो कि फ़िश की स्मेल सुन के वो खाना खाने आएगा, एंड क्या पता फिर वो उनके लिए ट्रेजर फाइंड आउट करेगा ऑब्वियसली. तो देवर लालच, देवर ग्रीडी. सो इसलिए उन्होंने ऐसा सेटअप किया. बट द डॉग वॉज वेरी मच इंटेलिजेंट, और वो ये क्रूअल पेयर, ये जो ख़राब ओल्ड मैन थे, उससे डरता था, क्योंकि उनको पता था कि वो लोग ख़राब हैं. इसलिए ना उसने कुछ खाया और ना वो अपनी जगह से हिला. देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground, as if a mighty treasure lay beneath. "Quick, wife, hand me the spade and hoe," cried the greedy old fool, and he danced with joy. Then the courteous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. But there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses, furious at the dog. The old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. Oh, so sad. सो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन कि उसने तो भाव नहीं दिया, राइट, क्रूअल पेयर को. तो उसने क्या किया, उसने ड्रैग किया, अपने वो डोर से बाहर निकला स्पेड और हो लेकर. उसने देखा कि वो डॉग वहाँ से सूंघते सूंघते पाइन ट्री के वहाँ से चला गया और वहाँ पे रुक गया और अपने पॉज को स्क्रैच, मतलब अपने पंजों को स्क्रैच करने लगा ग्राउंड में. तो उन्हें लगा कि ये एक ट्रेजर है, राइट. उसने लगा कि यहाँ पे वो डॉग प्राउंच कर रहा है, स्क्रॉ कर रहा है, तो वो एक ट्रेजर होगा. तो अपनी वाइफ को बोलता है कि जल्दी स्पेड और हो लेकर आओ. वो इतना बेवकूफ़ ग्रीडी ओल्ड फूल था कि वो डांस कर रहा था कि हाँ, हमें ट्रेजर मिल गया, हमें ट्रेजर मिल गया. बट एक्चुअली देयर वॉज अ ओल्ड फेलो. उसने क्या किया, अपने स्पेड और कॉर्न को डिग करने लगा वो जगह पे. तो उन्हें क्या मिला, एक डेड किटन मिला, एक डेड किटन. उसकी स्मेल इतनी गंदी थी कि वो अपने टूल्स को फेंक दिए और अपने नोज़ को शट करने लगे, मतलब बंद करने लगे. फिर उसने देखा कि वो डॉग इतना फ्यूरियस हो रहा है, तो उसने, जो ओल्ड मैन था, उसने इतना डॉग को मारा, इतना पीटा, जब तक वो मर नहीं जाए तब तक उसने पीटा.
और उसकी जो ओल्ड विकेड वुमेन थी उसने अपना काम इस तरह से ख़त्म किया, वो डॉग का हेड चॉप करके, उसकी वो डॉग का गला काट के विद अ शार्प हो। फिर वो क्या करते हैं, वो जो होल था उसको कवर अप करते हैं और द अर्थ ओवर हिज कार्केस। ये बहुत बुरा हुआ, राइट स्टूडेंट्स। देन the owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he puts fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned severely costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names, as if he were alive. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a morsel of your rice pastry and a meal for your bean sauce." So what happened, students? कि जब ऑनर को पता चला कि उसकी डॉग की डेथ हो गई है तो वो बहुत दुख हुए, उन्हें बहुत दुखी हुए। क्यों? वाई? बिकॉज ही वॉज द ओन चाइल्ड, वो उनका एक ही बच्चा था। तो वो उस रात पाइन ट्री के नीचे वहाँ पे गए और उन्होंने एक बॉम्बे ट्यूब्स लिया और ग्राउंड लिया और वो पूरे जगह पे टॉप्स को कर दिया। देखो आप इस तरह से पिक्चर देख रहे हो, इस तरह से, और वहाँ पे उसको दफना दिया गया, ग्रेव बना दिया वो पाइन ट्री के नीचे स्टूडेंट्स। और वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स दिए और एक कप ऑफ वाटर और फूड भी वहाँ पे उसने रखा। और सारे स्टिक्स, देखो इस तरह से 5 स्टिक दिख रहे, ये है पाइन ट्री। तो इस तरह से उसने किया। एंड ही वॉज कॉलिंग हिम, वो अपने वो द ओल्ड मैन, जो अच्छे ओल्ड मैन थे, वो बहुत उसे चिल्लाने लगा कि क्यों तुम ज़िंदा नहीं हो, आई एम इनकम्प्लीट विथ यू, आई मिस यू मुको। सो ऐसा वो बोलने लगा। फिर उसी दिन रात को जब वो ओल्ड मैन सो रहा था तो उसे डॉग का स्पिरिट सपने में आया, उसके ड्रीम में आया, और उसने क्या बोला कि वो जो पाइन ट्री है जो मेरे ग्रेव के वहाँ पे है उसको कट कर दो और उससे एक मोटर बनाओ। मोटर मतलब एक बाउल, बाउल लो, बनाओ राइस पेस्ट्री के लिए, और उसमें मील लेकर बीन सॉस करके उसको रेडी करके सेल करो स्टूडेंट्स। ओके, सो देन So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long, with great labor, partly by fire, partly by the chisel. He scraped out a hollow place as big as a small bowl. He then made a long-handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the bowls fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped his like rain. Meanwhile the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. So जब उसे स्पिरिट दिखा उनके ड्रीम में, डॉग के स्पिरिट, तो जैसे डॉग ने बोला वैसा ही सेम टू सेम ओल्ड मैन ने किया। उसने वो ट्री को कट कर दिया, मिडल ऑफ द ट्रंक सेक्शन लिया, 2 फीट बनाया, बहुत ग्रेट पार्टली फायर लगाया, सीजल किया, और उसमें से एक बिग और एक स्मॉल बाउल बनाया गया। फिर वो बाउल को हैमर से वो वुड के थ्रू बनाने लगा एक राइस का शेप के लिए। तो जब न्यू ईयर टाइम आया और उसने विश किया कि राइस पेस्ट्री बहुत अच्छा बनाया जाए, तो उसने राइस को बॉईल किया। ओके, राइस को बॉईल किया और वो मोटर में रखा, बाउल में रखा। फिर क्या हुआ कि उससे वो एक डो बना तो वो बहुत हेवी लगा, जो बाउल्स था वो बहुत हेवी हो गया।
एंड फास्ट द पेस्ट्री वॉज रेडी फॉर बेकिंग. जो पेस्ट्री थी वो बेक करने के लिए रेडी हो गया. तो सडनली उन्हें ऐसा लगा कि गोल्ड कॉइन्स, हर जगह गोल्ड कॉइन्स थे, बारिश हो गई गोल्ड कॉइन्स की. तो जो ओल्ड वुमेन थे उसने हैंड मिल फील किए कि ये एक तरफ से देखिए बारिश जैसे होती है ना गोल्ड की, उस तरह से ये सारे को वो टूटे तो वो एक गोल्ड की तरह बारिश, हर जगह गोल्ड मिला उनको. फिर तो जो उनके एवियस नेबर थे वो विंडो से देख रहे थे ये सब चीज़ें, एंड उन्हें ग्राउंड से वो लोग देख रहे थे. तो गुडी मी cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. Within a few minutes, the tub under the mill was full of a shining mass of gold. So the old couple were rich again. The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortal and magic mill. They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman to greed. But at the first bow and turned, the pastry and sauce turned into a full mass of worms. Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as firewood. तो क्या हुआ, ये सब चीज़ें तो उसके नेबर देख रहे थे. तो उसने जो क्या हुआ इसके बाद कि उन्होंने देखा कि इनकी जितनी भी पूरी की पूरी ड्रिपिंग सॉस है वो येलो गोल्ड में चेंज हो गई. तो कुछ टाइम बाद जो टब था, जो मिल का जो पूरा टब था वो पूरे के पूरे गोल्ड से भर चुका था. तो इससे क्या पता चलता है कि जो ओल्ड कपल था वो एक और बार अमीर हो गए. एंड द नेक्स्ट डे द विकेड नेबर केम एंड उन्होंने बोरो किया मोटर और मैजिक मिल. उसने जिस तरह से अच्छे व्यक्ति जो ओल्ड मैन थे उसकी तरह सेम टू सेम वो प्रोसेस किया. ओके, बट उसकी जो पेस्ट्रीज थी वो वॉर्म्स में चेंज हो गए, वॉर्म्स कीड़े मकोड़ों में चेंज हो गए. तो उन्होंने क्या किया, वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने वो पूरा का पूरा पाइन ट्री मील पीसेस में कट कर दिया. वो पूरा का पूरा पाइन ट्री को चॉप कर दिया, कट कर दिया और उन्होंने यूज़ किया फायर वुड के लिए, मतलब आग जलाने के लिए उन्होंने वो वुड को यूज़ किया स्टूडेंट्स. सो ये था हमारा पार्ट 1 स्टूडेंट्स. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स. लेटर ऑन वी विल डू दिस क्वेश्चन आंसर्स. सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दैट you have to write the meanings of the chapter 1 students. Okay, that is compulsory, and I have told you that you have to write 2 sentences of each of the meaning. So you can see over here like this one, these are the meanings. See, so there are some meanings. So मैंने आपको बोला है होमवर्क आपका ये है कि ये सारे मीनिंग्स आपको नोटबुक में लिखने हैं एंड आपके मीनिंग्स, एक मीनिंग के 2 सेंटेंसेस बनाने. जैसे कि फॉर एग्जांपल डैमियोस. सो द मीनिंग ऑफ डैमियोस इज वेल्दी, लैंड, ऑनर. ओके, स्नग, कंफर्टेबल. a being with a soul, like a human child showing emotion. A being with a soul, like a human child showing emotion. So the next one is turned up, means dug up, on purpose, intentionally. Gleamed, shone or glittered. These are the meanings. You have to write it in your notebook and you have to make the sentence also. Coaxed, persuaded, intensed. Dainties, tasty food. Covetous, greedy. Crone, old woman, old man's wife. Flung, throw. Carcass, dead body. Motor, bowl. Pounding, crushing, grinding. Stingy, misery. So these are the meaning, students, of the chapter 4. So you have to write it in your notebook. That is your homework, students. Okay. So now I will see you in the next video with part 2, students. So till there, stay home, stay safe. With the help of this line, I would like to pack up. So bye bye.